Hello, good morning student. Welcome to the class 11 physics. The previous video we have discussed about the second law of motion. We have discussed the second law of motion और डिस्कस किए हैं. This is the class 11 physics and chapter number 5. Chapter 5 is the previous video on the day 10, 11, 20. This we have seen. Today is the day 12, 11, 20, 20. The second law of motion ड्राइव from light wave. This F बराबर this F was equal to the dp by dt rate of change of momentum. तो इसी को सॉल्व किए थे तो निकल जाता है यहाँ dv by dx. इसी को सॉल्व किए थे dt तो ये हो जाता है यार into e. This is a vector, this is also vector, this is also vector, this is a vector. This one is there. Mass into acceleration is called applied force. The SI unit already we have discussed. So let us see the important points about the second law. Some important points about the second law. So this is the important points. Important points about the second law. के बारे में भी important point है वो हम लोग देखेंगे. If ऐसा हो जाए कि F बराबर 0, F applied force F जो है ये 0 हो जाए, then it implies ये क्या करेगा? Implies what? Acceleration must be 0. So when acceleration is 0, then what type of situation will come? If acceleration 0 means either the body is at rest, net force 0, मतलब acceleration 0, either the body at rest or uniform motion. This is obviously consistent with the first law of motion. First law of motion तो ही है, body या रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा. कब तक? Unless an external force act on it, unless an external force compels it to change the state. So this here the first law. Here it is obvious, obviously the consistence of first law of motion. The second law से first law भी derive कर सकते हैं. Second law of motion is a vector law. Second law of motion जो है, the second law of motion is a vector law. इसको vector law भी कहते हैं, है ना? जैसे फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ को क्या कहता है? लॉ ऑफ क्या नाम देते हैं? इनर्शिया भी नाम देते हैं. तो सेकेंड लॉ को वेक्टर लॉ का नाम दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं वेक्टर लॉ का नाम? तो इट इज इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशन. ये जो है, ये वाला जो है कौन? एफ बराबर करना है dpx dp वेक्टर बाई क्या आ गया? dt. सपोज 3 डायमेंशनली फोर्स लग रहा है, स्पेस में फोर्स लग रहा है किसी बॉडी में, ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट? यहाँ ये लीजिए फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है? तो दिस विल हैव वेक्टर है, तो वेक्टर का कंपोनेंट होता है.
अगर प्लेन में लग रहा था 2 कंपोनेंट होगा, स्पेस में लग रहा फोर्स, तो उस फोर्स का कितना कंपोनेंट होगा? 3 कंपोनेंट होगा। 1 कंपोनेंट along x axis, another component along y axis, और third component along z axis, right? So here we can write fx वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? fxi प्लस कितना होगा? fyj प्लस क्या हो जाएगा? fj कितना होगा? सिमिलरली इसको रिजॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे, तो हो जाएगा कितना? dpx बाई dt i हो जाएगा, प्लस dpy बाई dt j हो जाएगा, प्लस dpj बाई dt और क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लोग इक्वेटिंग करेंगे तो fx इसके बराबर होगा, मीन्स fx बराबर dpx बाई कितना? या इसी को v के फॉर्म में लिखेंगे, v का भी 3 कंपोनेंट होगा, तो दिस विल बी व्हाट है? dvx बाई क्या आ जाएगा? dt। और एक्सेलरेशन के फॉर्म में लेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी द व्हाट है? mdx। सिमिलरली fy बराबर dpy बाई dpy मतलब p मोमेंटम along y axis बाई dt, यह हो जाएगा dv sorry, this is the mdv, m लगेगा mdvx, तो हो जाएगा mdvy बाई dt बराबर हो जाएगा may, और fz को भी रिजॉल्व करके लिख सकते हैं, dpz बाई dt इज इक्वल टू mdvz बाई dt और बराबर हो जाएगा maj, लाइक दिस वी कैन रिजॉल्व, है ना? दैट यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95 में देख सकते हो। दिस मीन्स इफ ए फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसको हमको समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग देखेंगे। We have seen projectile motion in the कहाँ पर? The motion in the plane में देखेंगे। So this is dpz by dt and k, right? In case of projectile motion, you see, in case of projectile motion, when it will get 2-dimensional motion होगा, projectile motion is always 2-dimensional motion. A body is thrown, but this body will move like this. It is far away path. This is the trajectory of the projectile. Once it is thrown, जब एक बार थ्रो कर दिया जाएगा, इस जगह पर लेंगे, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी डायरेक्शन होगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा। This is the vy and this is the whatever vx along x-axis. Here the force is acting water. Force is acting downward. There is the force of gravity. Force of gravity, है ना? वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, जब यहाँ आ जाएगा तो इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी तरह। इफ द फोर्स इज नॉट along the direction of the velocity but makes some angle with it, it changes only the component. यह जो है, ये जो फोर्स है, ये सिर्फ उसी कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज करेगा जिसके अलोंग लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्स किसके अलोंग लग रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी का अलोंग लग रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अलोंग जो है फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था उसको हम लोग क्या माने थे? कांस्टेंट मान लिए थे, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या था? ax का वैल्यू क्या लिखे थे? अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ax का वैल्यू क्या हो गया? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अलावा फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स जब नहीं लग रहा है तो कैसा वेलोसिटी होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब क्या है? द बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलावा में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है वर्टिकल वेलोसिटी के अलावा, इसलिए एक्सेलरेशन भी किधर हो रहा है? वर्टिकल के अनुसार हो रहा है।
तो दिस in the motion of projectile under the vertical gravitational force, horizontal component of the velocity remain unchanged. These are the important points derived from the second law of motion. Right. Similarly, we will see कि ये फोर्स जो लग रहा है, जो न्यूटन सेकंड लॉ का अनुसार जो फोर्स है, दैट फोर्स ओनली एक्ट ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्ट. कहाँ एक्ट करता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है. द फोर्स एक्ट्स ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर चुके हैं. ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट if its shape and size is negligible with compared to the distance covered by this is called point object, है ना. तो मान लो कोई बहुत बड़ा बॉडी है, इसमें बहुत सारा पॉइंट बना हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या है? आगे हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ मास क्या है? ये पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेट. ऐसा मानते हैं कि बॉडी का सारा मास उस पर है, तो फोर्स कहाँ लगाना है? इसी पॉइंट पर लगाना है. इस पॉइंट पर लगेगा. इस पॉइंट पर जब लगेगा तो क्या होगा? होल बॉडी क्या करेगा? होल बॉडी मूव करेगा और जितना पार्टिकल है सभी उसी स्पीड से चलेगा, है ना. इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है. पॉइंट मास पर ही लगता है. अब एक हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल जो है 5.2 कर लोगे. एग्जाम्पल 5.3 है मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस वन. इससे डिस्क्राइब किया हुआ है ना. द example we will see 5.3 from the textbook, page number 96. Just we will explain this example and you will see the textbook page number 90. So let us see the a particle described or covered in distance y that is given by ut plus half at square. Ut plus half at square. This is also equation of motion, third equation of motion. The displacement along y-axis. Now you are familiar with this. So just we differentiate both sides. Differentiate both sides. With respect to t, क्योंकि राइट साइड वेरिएबल इज t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? dy/dt बराबर. यहाँ भी डिफरेंशिएशन होगा dy/dt ut प्लस कितना? यहाँ भी डिफरेंशिएशन होगा dy/dt और हो जाएगा हाफ at स्क्वायर. लाइक दिस डिफरेंशिएशन विल बी देयर. ओके. Wherever this differentiation is there, just differentiate करो. बहुत इजी है. मैथ वाले तो पढ़ोगे 12th क्लास में, 11th में पढ़ोगे. बायोलॉजी वाले थोड़ा सुनो. ये t यहाँ है, इसमें t वेरिएबल है, u कांस्टेंट है, u आ गया बाहर, तो t का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1 विद रिस्पेक्ट टू t प्लस यहाँ पर हाफ a बाहर आ गया. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t. याद रखना d/dx एक्स स्क्वायर होता है तो लिखते हैं 2x. सिंपल है. d/dx सिर्फ x होगा तो कितना? 1. b में लिखते रहे, दोनों का रिमाइंड होते रहे, है ना. बाली वाला एकदम घबराना नहीं. तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया. दिस इक्वल टू u प्लस ये हो गया कितना? a और क्या बन गया? a और ये t बन गया. a और t बचा. तो दिस इज द dy/dt. दिस इज द v. मैंने देखो आ गया ना. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफरेंशिएट किए तो कौन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया ना. कितना बढ़िया है.
अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हो जाएगा dv बाई कितना dt बराबर क्या होगा, u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जितना से चला था उसका बदला जो हुआ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, और ये तो ये रह गया, और d बाई dt और t मतलब हो गया ये 0 प्लस ये इंटू 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो ये dv बाई dt बराबर क्या हो गया a, तो होता ही है ना, दिस इज a राइट। तो ये लेकिन यहाँ पर जो है ना, थोड़ा हम डायरेक्ट किया, यहाँ पर क्या है, a के जगह पर क्या है g है, g कर देते हैं, a के जगह पर क्या g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, y का मतलब ये डाउनवर्ड गिर रहा है, तो डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपवार्ड में भी जब जाओगे तो g ही होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लास 9 में सुना है, और ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग 11 में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, तो उस एक्सेलरेशन का नाम क्या कहते हैं, a। तो जहां a है वहां लिख रहे हैं g, जहां a है वहां g लिख रहे हैं, क्योंकि सिंपल से चले थे उसको फिर इसके अनुसार चलना है। तो यहाँ भी क्या होगा g होगा, यहाँ भी क्या होगा g होगा, यहाँ क्या बचेगा g। तो dv बाई dt क्या है, g है, तो dv बाई dt को क्या कहते हैं, a बराबर कितना g, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग बॉडी इज क्या है, इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा कब होता है बाबू, जब फ्री फॉल होता है, याद रखना, फ्री फॉल का मतलब जैसे ये चौक पकड़े हुए हैं, इसको रिलीज कर दिए, फ्री फॉल हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन दोनों क्या है, बराबर है ना। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, तो एक्सेलरेशन तो निकल गया, तो देयरफॉर फोर्स गिवन बाय, फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी हाउ मच, तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू जी। तो ये फोर्स निकाल लेंगे ना, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन क्या बताता है, बताता वही है कि अंडर एक्सेलरेशन मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड y इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट इन द डायरेक्शन ऑफ द g। जो y ये है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, ये y हो गया, x हो गया, यहाँ बॉडी रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, y हो गया, है ना, और गिर रहा है कितना से, g से, ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग बॉडी के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दीज आर देयर, तो इसको करोगे, और छोटा सा हम लोग एक टर्म देख लेते हैं, इम्पल्स, राइट। तो इम्पल्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, है ना, इन शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड इम्पल्स, राइट, ओके। तो ये एग्जांपल है, तो इसका देख लेंगे हम लोग इम्पल्स का। इम्पल्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग ए शॉर्ट ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल, है ना, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, राइट। तो इम्पल्स बराबर क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे हम लोग, इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन। तो इम्पल्स जो है, इम्पल्स टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, इम्पल्स को दिखाते हैं जे से, किसे दिखाते हैं, जे से।
दिखाते हैं कि किसको मैंने पावर मोमेंटम को पी से इम्पल्स को दिखाते हैं दिस बिकम द फोर्स इनटू क्या छोटा टाइम ड्यूरेशन तो डेल्टा टी। हियर यू सी द जे इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में एक स्केलर से गुणा कर दोगे तो वो वेक्टर ही रहेगा, है ना। इसलिए ये फोर्स वेक्टर है तो ये भी क्या होगा वेक्टर होगा। तो जे बराबर एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ बराबर क्या वैल्यू होगा वो दैट इज द डेल्टा डेल्टा पी बाय क्या है डेल्टा टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसके जगह पर रखो क्या डेल्टा पी, दिस इज द डेल्टा पी बाय क्या आ गया डेल्टा टी इनटू क्या है डेल्टा टी।